السلام علیکم، میں ہوں ام ماس۔ ناول کے جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح تالیہ نے داتن کے ساتھ مل کے فاتح رامزل کے گھر دوسری چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پہلے ان کی ملازمہ کو ایک الرجک اسپرے اخبار کے تھرو لگوایا، جس کے ذریعے اس کو تھوڑی ہی دیر میں لال نشان آ گئے، اس کو بخار ہو گیا۔ جب اسرا نے اس کو یہ دیکھا تو اس کو فوراً چھٹی دی اور کہا کہ اپنے آپ کو چیک کراؤ، اور فوراً جو ہے وہ اسپرے والوں کو فون کر دیا تاکہ وہ آئے اور گھر میں ڈینگی سے بچانے کے لیے اسپرے کریں۔ جو ٹیم آئی وہ تالیہ اور داتن کے اپنے ہی لوگ تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے گھر میں داخل ہوئے۔ اسپرے کے دوران دھوئیں میں اس نے پہلے کمرے کو دیکھا جو کہ فاتح رامزل کا تھا۔ وہاں اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا سیف میں سوائے کچھ کاغذات اور پاسپورٹ کے۔ دوسرا کمرہ جو اسرا کا تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ وہاں ایک سیف تھا جو کہ کافی مشکل سیف تھا۔ وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے ان کو 75 منٹ درکار تھے۔ وہ وہاں سے جلدی سے باہر آئے اور وہاں سے آتے آتے اس نے اسرا کی ایگزیبیشن کا ایک انویٹیشن کارڈ اٹھا لیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیل پہ اس دوپہر پھر سے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے ایک دم سے برسنا شروع ہو گئے اور ساری سڑکیں جل تھل ہوتی گئیں۔ بازاروں میں پھرتے لوگوں نے چھتریاں تان لی اور صاحبان کی طرف دوڑے۔ ایسے میں آفس کا دروازہ کھول کے ایڈم داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کا گلاس بند ڈھکن اور اسٹرا سے لیس رکھا تھا۔ آفس میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں، بلائنڈ سختی سے بند تھی۔ فاتح کنٹرول چیئر پہ بیٹھا تھا، قد تکان زدہ، پیچھے کو ٹیک لگائے، ٹائی ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کی آستین پیچھے کو موڑے۔ وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ سامنے ایک سفید بالوں والے صاحب بیٹھے تھے۔ یہاں سے ایڈم کو ان کی پوچھ نظر آ رہی تھی۔ وہ کھنکارتا ہوا میز تک آیا۔ مہمان کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ فاتح کے ساتھ محفل گفتگو تھے۔ عبداللطیف ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھا تھا۔ نامور سیاستداں اور کاروباری شخصیت۔ ایک چور نظر ان پہ ڈالے سنجیدگی سے ایڈم نے میز پہ ٹرے رکھی۔ مہمان کی چائے آئے رکھی تھی۔ یہ فاتح کی کافی تھی جو وہ مال میں ایک خاص شاپ سے لایا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کہیں کی کافی نہیں پیتا تھا۔ اس کو فکس کرو۔ وہ کافی رک کے مڑنے ہی والا تھا کہ فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ایڈم نے چوک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک آفس کیبنٹ کا دروازہ گرا پڑا تھا۔ دروازے کا جوڑ قبضہ وغیرہ سب اکھڑ گئے تھے۔ رائٹ سر۔ وہ آگے بڑھا، پھر رکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر فاتح کی طرف گھوما۔ میرے کو ہتھوڑا ہوگا ادھر سے۔ وہ جو الجھن ایک طرح سے گفتگو شروع کرنے جا رہا تھا، سوال پہ ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا، پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک سخت نظر ایڈم پہ گھڑوں پانی ڈال کے وہ تیزی سے باہر لپکا۔ فاتح کے سیکرٹری سے ہتھوڑا مانگا، وہاں نہیں تھا۔ کسی نے بتایا کچن میں دیکھے۔ وہ ادھر بھاگا۔ بہرحال تھوڑی دیر تک کے بعد وہ میخیں اور پیچکس لے آفس میں دوبارہ داخل ہوا اور باس سے نظر ملائے بغیر ٹوٹی کے کیبنٹ تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ایش نے تمہیں پھنسا دی ہے فاتح، اب تم کیا کرو گے؟ کرکھیوں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ عبداللطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ایک ہاتھ گال پہ رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ ہار مان جاؤ گے صرف پیسوں کے پیچھے؟ ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہوں گے۔ بارسن نیشنل کے 2.5 لاکھ ممبرز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں۔ تم پارٹی چیئرمین منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک آدمی تھا عرب میں۔ وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چہرہ گھما کے کہنے لگا۔ آواز آہستہ اور تکان زدہ تھی۔ ایڈم دھیرے دھیرے پیچ کسنے لگا، سر جھکائے، سنجیدہ صورت بنائے، مگر کان گفتگو پہ لگائے ہوئے۔ مالدار، عزت دار، باوقار۔ اس کا نام عمرو تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کعبہ آنے والے حاجیوں کے لیے شوروم میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا جس کو سب کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ایڈم پیج قبضے میں جمائے آہستہ سے اس اوزار سے کس رہا تھا۔ دھیان وہیں تھا۔ ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو راستے میں مدینہ میں سے ایک خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں ٹھہرا، پھر شام
चला गया। इस सफ़र में उसका इंतकाल हो गया। पीछे से बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, मगर हाशिम के ख़ानदान वाले इस शादी से वाकिफ़ नहीं थे, तो बच्चा माँ के पास पलता रहा। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद से थे, ब्लॉन्ड सुनहरे जैसे, इसलिए उसका नाम शीबा सफ़ेद बालों वाला रखा गया। शीबा 10-12 साल का हुआ तो हाशिम के भाई मुतल्लिब को उसका इल्म हुआ। मुतल्लिब के लिए ये एक जज्बाती धचका था। वो फ़ौरन मदीना गया और भतीजे को उसकी माँ से इसरार के साथ अपने साथ ले आया। अरब में लोग सफ़र से वापसी में नौजवान गुलाम खरीद के साथ लाया करते थे। मुतल्लिब जिस वक्त शेबा के साथ मक्का में दाखिल होते, लोगों ने समझा कि वो नया गुलाम खरीद कर लाए हैं, तो उस लड़के को अब्दुल मुत्तलिब पुकारने लगे, यानी मुतल्लिब का गुलाम। मुतल्लिब ने क्लियर कर दिया कि मेरा भतीजा है, मगर शीबा का नाम उस दिन से अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया और आज तक हम उनको इसी नाम से जानते हैं। मगर मैं तुम्हें ये किस्सा क्यों सुना रहा हूँ, ठहरो। अब्दुल लतीफ़ साहब ने पहलू बदला तो फातिह ने हाथ से इशारा करके उन्हें ठहरने को कहा और उसे संजीदगी से बात जारी रखी। एडम के कान भी वहीं लगे थे। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के आला और मुअज़्ज़ज़ खानदान में से थे। अगर तुम इन लोगों की तारीफ पढ़ो तो देखोगे कि बहुत ऊंचे अखलाक के अजीम लोग थे, बावकार, बहादुर और जरी। ये हमारी तरह छोटे छोटे मफादात के पीछे बड़े बड़े समझौते नहीं करते थे। ये दौलत और कीमती चीज़ों के अंबार अपने गिर्द लगा के खुद को उनका गुलाम नहीं बनाते थे। अब्दुल लतीफ़ ये आज़ाद थे, ये अपने जज्बात अपनी आस्तीन पे पहन के रखते थे। अब्दुल मुत्तलिब की मक्का में बहुत इज्जत नामवरी थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत, निडर और दिल के सच्चे। उनको एक रात ख्वाब में किसी की आवाज़ आई कि जमजम का कुआं खोद दो। वो उठे तो देखा वहाँ कोई नहीं था, वो अकेले थे। वो सांस लेने को ठहरा। एडम के हाथ रुक चुके थे, वो बिल्कुल दुम साधे सुन रहा था। गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो चुके थे। जमजम का कुआं कई सदियों पहले बनु जरम ने मक्का छोड़ने वक्त दफन कर दिया था और साथ उन्होंने काबे के सोने के 2 हिरन, कदीम तलवारें, ज़रें वगैरह भी उसमें दफन की थी। ये सब नेशनल ट्रेजर था, मगर अब्दुल मुत्तलिब को समझ नहीं आ सका कि उसको कैसे खोदे। अगली रात उन्होंने फिर ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कह रहा है कि जमजम का कुआं खोदो, तुम उससे खोद के नहीं पछताओगे। ये तुम्हारे आबा अजदाद की तरफ से तुम्हारा तोहफा है। ये न कभी सूखेगा, न इसका पानी कम होगा। ये हाजियों की प्यास बुझाने को काफ़ी होगा। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि कहाँ है, तो जवाब मिला टीले के पास, जहाँ कुआं चोंच से ज़मीन पे दस्तक दे रहा है। अगली सुबह वो अपना इकलौते बेटे हारिस के साथ काबे की तरफ गए। करीबी टेले पे कौवा उड़ता हुआ आया और जमीन पे चोंच रगड़ने लगा। दोनों बाप बेटे ने कुदालें थामे और उसको जगह को खोदने लगे। यूं सदियों से दफन कुआं दरियाफ्त हो गया, खजाना भी मिल गया, मगर दूसरे लोग इकट्ठे होने लगे। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब का कहना था कि ये हमारा है और इसे हमने ढूंढा है। वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अब्दुल मुत्तलिब अकेले थे और उनका एक ही बेटा था। इस वक्त उनका अपना आप बहुत कमजोर लगा और गो के बाद उनको सारा खजाना कुएं में से हिस्सा मिल ही गया। लेकिन इस मौके पर उन्होंने दुआ मांगी थी कि अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे तो मैं एक काबे के पास कुर्बान करूंगा। उनके मर्तबे का सरदार, एक बहादुर आदमी, एक जुर्रतमंद लीडर, वो सिर्फ एक चीज़ के बलबूते पर उनका मुकाबला कर सकता था, अपने ख़ानदान की ताकत और कुछ नहीं। हम तब तक किसी जंग में नहीं जा सकते अब्दुल लतीफ़ जब तक हमारा ख़ानदान हमारे साथ ना खड़ा हो। अगर हम उनको कन्विंस ना कर सकें कि हम जीत सकते हैं, अगर वो साथ छोड़ दें तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इसकी आवाज़ में तकलीफ समझ आई थी। एडम बिल्कुल शल सा बैठा था। उससे बॉस को इतने दुख से बात करते पहली दफ़ा सुना था। मैं इस इंतखाब में तब तक नहीं जा सकता जब तक असरा बच्चे मेरे साथ ना हो। मैं पैसे की कमी से नहीं डरता, लेकिन इतने साल मैंने मलेशिया के लिए जद्दोजहद की, दुख उठाए, कुर्बानियाँ दी। उसने एक नज़र इस फोटो फ्रेम पे डाली जो मेज़ पे रखा था। नन्ही सी मुस्कुराती बच्ची। फातिह की आंखों में तकलीफ हुई। हर बात के ख़त्म पे मैं यही सोचा था कि कभी तो अल्लाह मुझे हर चीज़ के कंपनसेट करेगा, लेकिन अब ऐश चाहता है कि मैं अपने ख्वाब से दस्तबरदार हो जाऊँ। तो क्या वो इतने साल बेमुसरफ गए? इन सारी कुर्बानियों को मैं ज़ाया कर दूँ? ख्वाब तो बच्चों की तरह होते हैं, हम उनको अपने साथ बड़ा करते हैं, लेकिन मेरे ख्वाब शायद बूढ़े हो गए हैं। एडम ने आखिरी पेच कसा और सामान उठा के उठ गया। दरवाजे खोलते उसने सुना कि अब्दुल लतीफ़ कह रहे हैं असरा को कन्विंस किया जा सकता है। उसने बाहर आके दरवाज़ा बंद किया तो आवाज़ों का रास्ता रुक गया। वो वही सिक्योरिटी के कैबिन के आगे मुंतज़िर अफराद के पीछे सोफे पे बैठा और मोबाइल निकाल के अपनी माँ को कॉल मिलाई। जैसे उसने फ़ोन उठाया, एडम गहरी सांस लेकर नज़र झुकाए कहने लगा, तुम सही कहती थी माँ, मुझे फातिह रामज़ल की दिल से खिदमत करनी है। वफादारी, सच्चाई और अमानत का आजकल कोई मोल नहीं होता। और पता है क्या,
अब मैं भी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, बड़ा आदमी, ऊंचे ख्वाब, ऊंचे मकसद रखने वाला। मुझे अपने आप को किसी बामकसद काम के लिए इस्तेमाल करना है। और वो जो आंखों में नए नए ख्वाब सजाए कह रहा था, एकदम उसके जूते पे किसी ने बूट रखा तो वो बिलबिला के खड़ा हुआ और मोबाइल नीचे किया। सामने सेक्रेटरी खड़ा उसे घूर रहा था। क्या हुआ सर? वो बुखलाया। तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो तुम ओवर स्मार्ट बन के फातिह साहब के आगे पीछे फिरने की कोशिश कर रहे हो, अब्दुल्ला की नौकरी हथियाना चाहते हो तुम क्या? हाँ? नहीं सर, आपको गलत फहमी। वो हकलाया, मगर सेक्रेटरी ने गुस्सैली नज़रों से उसे घूरते हुए बूट से उसका अंगूठा मजीद जोर से दबाया। इस ऑफिस में बहुत से आए और बहुत से गए। जो आता है ताकत का ख्वाब लेकर आता है और मैं उसे मक्खी की तरह निकाल फेंकता हूँ। इसलिए लंबे लंबे ख्वाब मत देखो, अपने गिने चुने दिन पूरे करो और सर से ज़्यादा फ्रैंक ना, वरना अभी अब्दुल्ला को कॉल कर बता दूंगा कि तुम उसकी नौकरी हथियाने की कोशिश कर रहे हो। वो तुम्हारी जान ले लेगा। समझ में आया? जी सर। एडम ने निगाहें झुका दी। अब उससे माफ़ी मांग। नौजवान सेक्रेटरी इसी तरह घूरते हुए चबा चबा के बोले तो एडम ने गुलाबी पड़ती आंखें उठाई। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। वो हंकारा भर के मुड़ा और बूट उसके पैर से हटा दिया। एडम ने फ़ोन ऊपर करके देखा, कॉल अभी तक मिली हुई थी और माँ यकीनन खामोशी से सुन रही थी। उसे फ़ोन कान से लगाया तो खुद से ही कहने लगी, लोगों की तंगी ना हो तो कोई आगे बढ़ ही ना सके। तुम देखना, अल्लाह तुम्हें दोहरा बख्त लगाएगा एडम। तुम एक दिन दुनिया पे हुकूमत करोगे, ये तुम्हारी माँ की दुआ है। उसे जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। वो जानता था वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए कह रही है, वरना आजकल के दौर में सोने के हिरन और जमजम के कुएं किसे मिलते थे। उसने देखा कि वो कीचड़ आलू जमीन थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे, 4-5 दरख्तों में घिरे हुए। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। वो दरख्त से टेक लगाए उकड़ू बैठा था, उसे पतलियां सुकोड़ के चुपती नजरों से देख रहा था। वो सामने कीचड़ पे बैठी थी, उसके मुंह पे मिट्टी लगी थी, उलझे सुनहरे बाल गर्द आलूद थे, चेहरे पे जख्म के निशान थे, कपड़े फटे पुराने थे। वो भी फातिह को उन्हीं नजरों से देख रही थी और बाजू में कुछ पकड़े बैठी थी। एक नन्हा हिरन था। वो उसको अपने बाजू में जबरदस्ती जकड़े हुई थी। हिरन कसमसा रहा था, फड़फड़ा रहा था, मगर तालिया ने अपना कीचड़ आलूदा पाँव उस जानवर की गर्दन पे रखा हुआ था। एडम मुझसे पूछा था, याद है? वो नजरें उस पे जमाए कीचड़ पे रखा चाकू उठाते हुए कर रहे थे कि ताशा, तुम्हारे टैलेंट क्या है? तुम्हारी जिंदगी में कामयाबियां क्या हैं? तुम्हें क्या आता है? वो एक एक लफ्ज चबा चबा के अदा कर रही थी। चाकू अब हिरन की गर्दन से लगा लिया था। नजरें फातिह के चेहरे पे मरकूज थी। मुझे ये आता है, और साथ ही चाकू तेजी से हिरन की गर्दन में घोंप दिया। मासूम जानवर चिल्लाया, तड़पा, खून के ताजे छींटे फातिह के चेहरे और शर्ट पर आ गिरे। उसने आंखें बंद कर ली और सर झटका, बोला कुछ नहीं। हिरन तड़प रहा था, खून बह रहा था, उसके कपड़े जमीन सुर्ख खून से रंगीन होती जा रहे थे। वो एक झटके से उठ बैठी, घबरा के इधर उधर देखा। बेडरूम तारीख था, वो अकेली थी। एसी चल रहा था और आरामदेह ठंडे माहौल में सुकून ही सुकून था, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, बाल तक गीले हो गए थे। वो तेजी से बिस्तर से उतरी और लैम्प जलाया। जर्द रोशनी तारीकी में घुल के कमरे को नीम रोशन कर गई। उसने बेख्तियार अपने हाथ देखे, अपने कपड़े झाड़े, खून को जानवर कुछ भी तो न था। ताली ने सर हाथों में गिरा लिया और बेड किनारे बैठती चली गई। ऐसा पहली दफा हुआ था। ऐसे भयानक खौफजदा करने वाले ख्वाब वो पहले नहीं देखा करती थी। उसे इनसे कभी डर नहीं लगा था। फिर अब क्या हो रहा था? आर्ट गैलरी इस शाम अपनी मुरमुरी राहदारियों के साथ चमकती हुई दिखाई देती थी। दूर दूर तक दीवारों पे आवेजा पेंटिंग, शीशे के चौखटों में नुमाइश के लगाए नवादरात। बड़े हॉलनुमा कमरे की छत 2 मंजिलें ऊपर थी। किसी शॉपिंग मॉल की तरह फर्श पे खड़े होकर गर्दन उठाओ तो ऊपरी दोनों मंजिलों को चौकोर बालकोनियां और में टहलते लोग साइड दिखाई देते थे। सयाह और आर्ट के कदरदान रुक रुक कर नुमाइशी शहपारे देख रहे थे। ऐसे में ऊपरी मंजिल पे कॉर्नर ऑफिस के अंदर खुशगवार माहौल में मीटिंग जारी थी। कंट्रोल चेयर पे असरा महमूद बैठी थी, माथे पे कटे बाल सामने किया, बाकी को फ्रांसीसी जूड़े में गूंदे। उसने स्कर्ट के ऊपर ग्रे मिनी कोट पहन रखा था। बड़ी भूरी आंखों में मुस्कुराहट लिए वो हाथ हम मिलाए आगे को होकर बैठी कह रही थी, मैं आपकी इस अनायत की जितनी कदर करूं कम है। हम इस पेंटिंग को नीलामी में रखेंगे और उससे हासिल होने वाली रकम का 1/4 हिस्सा खैरातीदारों को भेजा जाएगा। अल्लाह आपसे कबूल करे। सामने हबशी सूरत सूट में मलबूस लंबा तड़ंगा आदमी बैठा था, जिसकी फ्रेंच दाढ़ी थी और उसके आगे पीछे 3-4 अफराद बैठे थे। इनमें से एक अशर भी था। वो बस मुस्कुरा के सारी कार्रवाई देख रहा था। असरा की सेक्रेटरी असरा के पीछे मुस्तैद सी खड़ी थी और मेज पे एक बड़ा
बड़ा सा लकड़ी का डब्बा रखा था जिसके अंदर फ्रेम में यकीनन एक पेंटिंग थी। नवाजिश मैम मुसा को खाम देकर मुस्कुरा के बोला था, ये पेंटिंग हमारे ख़ानदान में पिछले 70 साल से मौजूद है। तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। स्पॉयलन चीनी पेंटर अमूमन चीनी और मगरबी ताजरों के पोर्ट्रेट बनाता था, मगर उसका ये काम ज़ख्मी है इसके दूसरे तमाम काम से मुख्तलिफ है। पीछे खड़े गार्ड ने झुककर डब्बे का ढक्कन हटाया तो असरा कुर्सी से उठ खड़ी। तमाम बैठे हुए अफराद भी उठ गए। पेंटिंग एक दरख्त की थी जिसके तने के साथ एक हिरन गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसकी आंखें आसमान पे जमी थी। इनकी आंखों की यासियत उनका कब असरा ने सच्चाई से गहरी सांस ली और होले से पेंटिंग के शीशे को छुआ। स्पालिन की सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वो रिवर्स ग्लास पेंटिंग करना जानता था। इस ज़माने में 18वीं सदी में सिर्फ मगरबी पेंटर्स इसमें महारत रखते थे, शीशे पे उल्टी तस्वीर बनाना और फिर इसको सीधा करना। सुभान अल्लाह, वो तहसीन से कह रही थी। फिर उसने सर उठाया, मुस्कुरा के मेहमानों को देखा। मैं फातिह के लिए माजरत ख्वाह हूँ, यकीनन ट्रैफिक में फंस गया होगा वरना वो पहुँच जाता। उसने वादा किया था। फिर वो ज़रा ठहरी, अगर आप थोड़ी देर ठहर जाएँ तो। मेरी शदीद ख्वाहिश थी मगर कुछ काम ऐसे आन पड़े हैं कि मुझे जाना पड़ रहा है, मगर आप ये ना कि समझिए कि ये तोहफा किसी मतलब के लिए है। वो खफीफ सा होकर बोला तो मुस्कुरा दी। बिल्कुल भी नहीं, अजय की मुस्कुराहट गहरी हुई। चंद मिनट बाद जब तमाम मेहमान जा चुके थे असरा वापस कुर्सी पर बैठी और बेनियाजी सेक्रेटरी को इशारा किया, एक्सपर्ट्स को बुलाओ, वो आए तो मैं इस काम से फारिग हो जाऊँ। जेन्युइन है तो हम इसको रखेंगे वरना फेंक दें। एहसान साहब और रज़ाक साहब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और अब्दुल हलीम साहब, उनको नहीं बुलाया? नहीं, अब्दुल हलीम साहब मुल्क से बाहर हैं, सिर्फ यही दस्तियात है। ठीक है, उनको बुलाओ। उसने खुद से हाथ का इशारा किया, फ़ोन को देखने लगे। सेक्रेटरी झट से बाहर निकल गई। फातिह कभी मेरा मान नहीं रख सकता, वो बेबसी भरे उससे सहज बोली तो नरमी से उसे तसल्ली देने लगा। काका, अच्छा हुआ कि आप नहीं आया, वरना शायद इनकी शान में साफगोई से कुछ ऐसा कह देता कि उल्टा हमें उनको दो चार इंटेलिजेंस देकर बात ख़त्म करनी पड़ती। इसके अंदाज पे वो बेसाख्ता हंसती।